हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लवर्स। आज हम गांधी जी के मोस्ट फेमस चैप्टर हिंद स्वराज के बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हिंद स्वराज गांधी जी की एक ऐसी बुक है जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में काफ़ी ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह अंग्रेज़ हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे देश में डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। उन्होंने एक एक करके हमारे देश के हर कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और बाकी का हम आगे देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। द हिंद स्वराज इज़ वन ऑफ द मोनूमेंटल वर्क्स बाय महात्मा गांधी in which he has considered different aspects of Indian society and development during slavery. Originally, he had written it in Gujarati, but later he himself translated it into English, the only work he translated himself. He wrote this book within a short period of about 10 days between 13th November to 22nd November in 99, when he was on the return journey from England to South Africa in the ship किल्डोन कासल। तो इस बुक के बारे में बताया है जो गांधी जी ने लिखी है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक इन्होंने 10 दिन के पीरियड के अंदर लिखी और ये इन्होंने कब लिखी, जब इनकी एक यात्रा थी इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका के बीच। उस दौरान इन्होंने इस बुक को लिखा। When he used to write, his right hand got tired, then he began writing with left hand without stopping. Gandhiji published this book in Gujarati language in Indian Opinion soon after its completion. The book consists of 20 brief essays in the form of dialogue between the reader and the editor. Gandhiji was well aware of the fact that translation cannot be as powerful as original and confessed that it is not a literally translation but it is a faithful rendering of the original. वो गांधी जी के बारे में बताते हैं इसमें कि गांधी जी का जब एक हाथ लिखते लिखते दुख जाता था, दर्द उनमें पेन होने लग जाता था, तब वो अपने लेफ्ट हैंड से उस बुक को लिखा करते थे बिना रुके। सो इसी तरह इन्होंने 10 दिनों के अंदर अंदर हिंद स्वराज बुक को लिखा। देन Gandhi has expressed his opinion on different aspects of Indian life. Quite frankly, they are certainly what he himself feels, but they have been influenced by great thinkers like Tolstoy, Ruskin, Emerson, and so many Indian philosophers. The Indian had were released the fact that English were exploiting them and that home rule is very essential. Congress made a praiseworthy contribution because it brought together the Indians from different parts of the country who had the passion of nationality in their hearts. Gandhi came forward with his concept of Swaraj and did not agree to accept the British parliamentary form of government after India gets freedom. He thought that this system was not suitable to Indian conditions because it seeks to increase bodily comfort and it failed miserably even in doing so. अब इसमें गांधी जी क्या बताते हैं कि इन्होंने मशीनरी, उस टाइम जो अंग्रेज़ों की जो उस टाइम मशीनरी फैसिलिटी थी उसको बहुत ही अवॉइड किया था, बहुत ही उसके ख़िलाफ़ थे ये। कैसे? ये कह रहे थे इसमें कि जो मशीनें हैं वो इंसान को बॉडीली तो बहुत ही कंफर्ट दे रही है, लेकिन वो डे बाय डे इंसान को, उनके शरीर को, उनके लिए ख़तरा भी साबित हो रही है। कैसे? जब सारा काम मशीनों द्वारा ही किया जाएगा तो फिर इंसान तो बेरोज़गार हो जाएगा, ना ही उनके पास कोई काम होगा। सो नेक्स्ट, Gandhi then goes deeper into analyze the causes of Indian slavery and backwardness. He concludes that its root cause is a deep-rooted internal weakness among the people of India. They are miserably divided among themselves and have never felt themselves united as a single nation.
There are division between Hindus and Muslims and even in the same caste. Gandhiji has expressed his views about education and its condition in India. He tells that simply the understanding of the alphabet is not education because it does not increase his happiness in the least. If a man does not achieve education of the formal type, he can still be a man of knowledge, although the knowledge of letters is also essential. सो इस बुक में हम देखते हैं कि गांधी जी ने इस बुक को 20 ब्रीफली ऐसे में डिवाइड किया है, जिसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या बताया गांधी जी ने, एक दो करेक्टर यूज़ किए हैं, एक रीडर और एक एडिटर। इन दो करेक्टर के ऊपर ही इन्होंने पूरी बुक को लिखा है। इस बुक को लिखने के लिए इन्होंने गुजराती लैंग्वेज का यूज़ किया। सबसे पहले इन्होंने गुजराती लैंग्वेज में इस बुक को लिखा, देन इसके बाद ये इंग्लिश में भी पब्लिश हुई। अंग्रेज़ों ने इसे इंडिया में बैन कर दिया था इस बुक को। देन इसके बाद ये फॉरेन में भी इंग्लिश लैंग्वेज से पब्लिश हुई। और इस बुक में गांधी जी ने ये बताया है कि किस तरह वो फॉरेन की स्टडी के अगेंस्ट थे। वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत अच्छे से विस्तार हो। वो मानते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज एक नेसेसरी है, बट वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ की सारी पढ़ाई सिर्फ इंग्लिश में ही हो। वो ये जानते थे कि जैसे पुराने ज़माने में कैसे गुरुकुल में जाते थे, वहाँ पे मोरल वैल्यूज़ सिखाई जाती थी, कितनी नैतिक शिक्षा मिलती थी बच्चों को, तो वो इस शिक्षा की बात यहाँ करते हैं। इसलिए उनको फ़ॉरेन की पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। सो नेक्स्ट, our old education was good because it created great moral values in the people. He frankly declares that these English knowing people have enslaved us. It is used only for making money. The important English books should be translated into Indian languages. In our education, religion should occupy the most important place. He is favor of learning both Hindi and Urdu languages because in order that the Hindus and the Mohammedans may have closer relations, it is necessary to know both the characters. In this way, Gandhi disapproves the Western style of education. सो इसमें हम देखते हैं कि गांधी जी किस तरह इंडिया में हिंदी और उर्दू लैंग्वेज का विकास चाहते थे। वो यही चाहते थे कि इंडिया के अंदर लोग बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हिंदी और उर्दू लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, और जिससे इंडिया में हिंदूज़ एंड मुस्लिम जिनके रिलेशन थे काफ़ी क्लोज आएँ और दोनों प्यार से रहें। इसीलिए वो इंडिया के अंदर वेस्टर्न कल्चर नहीं चाहते थे। Gandhiji has expressed we should what we can with our hands and feet because our real happiness and health consist in proper use of our hand and feet. Indian thinkers ask to limit our desires because they take us away from happiness. अब गांधी जी कहते हैं कि अब इसमें गांधी जी ने ये क्या रखा है कि उन्होंने इस टाइम पे जो मैकेनिज़्म है, मशीनरी को बहुत ही अच्छे से अवॉइड किया है। वो बताते हैं कि इंडियंस को अपने हाथ और पैरों का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए बजाय मशीनों के। दिस इज़ वाई वी नोटिस डैट द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी. He is not against the use of machinery, but it enslaves us. This is why the Indians were satisfied with their small villages. जिस तरह उन्होंने इन बातों का संदेश इंडियंस को दिया, उस तरह इंडियन इन बातों से बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने अपने अपने विलेजेस, अपने अपने गाँवों में ही मैकेनिज़्म को अवॉइड करके उन्होंने क्या किया, अपने हाथ पैरों की यूज़ करके रोज़गार करनी शुरू किए। वो बात अलग है कि आज के टाइम में मशीनरी बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही है, लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा ही था।
Gandhi's views find a wide and deep expression in Hind Swaraj about various aspects of Indian social life. He told Ahimsa and Satyagraha are the most powerful weapons to attain freedom because the use of force destroy all goodness. गांधी जी का मानना था कि बुराई को अच्छाई द्वारा ही जीता जा सकता है, तो वो अहिंसा और सत्याग्रह के राह पर चलने वाले पर्सन थे. We should perform our duties and our rights should be based on truth and religion. Thus, Gandhiji was not against the English but against their evil ways of life and their civilization. So, इसमें गांधी जी का मानना ये था कि वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, इंग्लिश की जो लैंग्वेज, इंग्लिश की जो स्टडी है उसके खिलाफ नहीं थे. वो जो वेस्टर्न कल्चर था, जो अंग्रेज़ हमारे इंडिया में लेकर आए थे, उन चीज़ों के खिलाफ थे. वो यही चाहते थे कि इंडिया का एक अपना कल्चर हो, जबकि उनका ये जो मानना था वो सफल नहीं हो पाया. जो उनका ये ड्रीम था वो कंप्लीट नहीं हो पाया. इंडिया में आज भी वेस्टर्न पढ़ाई हो रही है, बाहर की पढ़ाई हो रही है, लोग पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं. सो हिंद स्वराज उनका एक ड्रीम था गांधी जी का, जिनमें उन्होंने अपने आइडियाज़ बताए. सो कैसी लगी हमारी ये वीडियोस?